Good morning, all of you. Today we are going to discuss the sensor and actuators. In our today's sessions, we will discuss the ultrasonic sensor, how it is interface with the Arduino development board. Today we will discuss the two things. One which is the ultrasonic sensor, as well as how we interface with the Arduino development board. Clear? So before starting of our topic ultrasonic sensor, yesterday we have discussed there is a two terms we are using in the IoT or Internet of Things. One which is the sensor and another is actuators, and both are used for the accessing the data in an external environment. If we are taking the data from the external environment or physical environment, so we can use the sensors, and we can say that the sensor is work. Yeah, we can also define the sensor as a transducer. And in transducer, we already know about in physics. It is a device, it's a circuitry which is used to convert any analog signal into or we can say that the physical quantity into electrical quantity. अगर कोई भी physical quantity है उसको अगर electrical quantity के अंदर convert करना है और उसके लिए जो device या circuitry हम use करेंगे, it's known as a transducer. Already we have discussed the example of transducer is in like a microphone. Microphone को हम use कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि it will be work as a transducer. Whenever we are using when we are talking about the actuators, it is a just reverse process of the sensor. It means we give the input, we are using a device or a circuit which take the input in the form of electrical signal, और जो आउटपुट में यूज किया जाएगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हमको मैकेनिकल क्वांटिटी मिलेगा, या हम मोटी पावर बोल सकते हैं, या रोटेटिव पावर बोल सकते हैं, या रोटेशन को बोल सकते हैं. तो हमने इसका एग्जांपल लिया था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इट. उस तो हम यहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स को यूज करेंगे, और सबसे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो ह्यूमिडिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक और टेम्परेचर सेंसर दे रखे हैं. और फिर इसके साथ इनको किस तरह से डेवलपमेंट बोर्ड पर या जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको किस तरह से इसको इंटरफेस किया जाएगा, हाउ वी कनेक्ट इट विथ आवर प्रोसेसिंग डिवाइस या डेवलपमेंट जो बोर्ड हम यूज कर रहे हैं उनके साथ इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे. एंड हाउ वी कोड दिस, या किस तरह से इसको प्रोग्राम किया जा रहा है, उन चीजों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इस सेकेंड यूनिट के अंदर. तो कल हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो प्रोसेस है, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल है, उसके अंदर सेंसर और एक्चुएटर्स का इंपॉर्टेंट रोल है. वी आर गेटिंग द सम डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट विल बी फीड टू द सेंसर. व्हेन वी वांट टू process these data towards the controller or computer or processing device, first we need to convert into digital format, because of all the computer controller devices or processing devices based on the digital format. So first we need to convert these data into digital format. So for that we use a device or intermediate device which is known as a analog to digital converter. अब कल हमने बात भी कर ली थी कि जितने भी जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, वो सभी के सभी डिजिटल डिवाइस पे वर्क करते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं दीज आर द डिजिटल डिवाइसेस. सो when we are using any digital device, we give the data in the form of digital data, and we also get the output from these device in digital format. तो यहाँ हमने डिजिटल वे में डेटा को कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग ऑफ एडीसी. जब हम इनको एक्चुएटर्स के ऊपर प्रोसीड करेंगे तो अगेन वी यूज द कन्वर्टर, बट जो कन्वर्टर होगा यहाँ पे अब जो यूज किया जा रहा है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है. तो बेसिकली जो सेंसर है वो किस और जो कंट्रोलर और प्रोसेसिंग है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट डिवाइस होगी दैट इज द एडीसी, और एक्चुएटर्स और प्रोसेसिंग या कंप्यूटर कंट्रोलर के बीच में जो डिवाइस होगी वो डैक होगी. ये कल हमने डिस्कस किया था. उसके बाद सेंसर की वर्किंग के ऊपर हमने बात की थी. उसके बाद हमने ट्रांसड्यूसर में हमने बोला कि दो तरह से हम सेंसर और एक्चुएटर्स को यूज कर रहे हैं किसी भी आईओटी बेस्ड सिस्टम के अंदर. और इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की गई थी. प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या हो रहा है, तो अगर फिजिकल एनवायरनमेंट से जो डेटा लिया जाएगा और सेंसर को फीड किया जाएगा, वो जो ट्रांसड्यूसर होगा, जो वो डिवाइस होगी, दैट इज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर. एंड उसको किस तरह से यूज किया जाएगा, उनकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाएगा, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. बोथ आर द, यानी कि हम ट्रांसड्यूसर जो है सेकेंडरी के रूप में जो हम यूज कर रहे हैं, उसका जो फंक्शन है वो ये है कि किस तरीके से हम रीडेबल या एक्सेसिबल फॉर्मेट के अंदर हम हमारे डेटा को एक्सेस कर पाए.
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एनालॉग सेंसर और मल्टीपल सेंसर कैसे होगा, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि वी हैव द सम सेंसर एंड उनको किस तरह से इंटरनेट के ऊपर भेजा जाएगा, उस इंफॉर्मेशन कैसे क्लाउड के ऊपर सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सेस पॉइंट यूज किया है पीसी के बीच में, और वो डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है दोनों साइड से। यहाँ पे सेंसर बस का मतलब है कि वो किस तरह से इंटरफेस कर रहे हैं, उनको किस तरह से कनेक्ट किया गया है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है, कैसे कम्युनिकेट की जा रही है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंसर बस, और उसको फिर इंटरनेट के। तो यहाँ पे ज्यादा हम जो आईओटी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल सेंसर डिस्प्ले ओवर इंटरनेट, इस तरह की टोपोलॉजी को या इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एक आईओटी जो हम सिस्टम अप्लाई या एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ सेंसर यूज किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जनरली वी गिव द अप्रोच ऑफ मल्टीपल सेंसर डिस्प्ले ओवर ए इंटरनेट। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट सेंसर्स की बात की थी, उसमें टेम्परेचर सेंसर है, आरएफआईडी है, बारकोड है, प्रॉक्सिमिटी है, विजन है, गायरोस्कोप है, एक्सेलेरोमीटर है, और पीआईआर सेंसर है। पीआईआर सेंसर जो पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, जो ह्यूमन इंटरफेस को चेकआउट कर सकता है। अगर हमको देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई किसी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी है, तो वी कैन एक्सेस और वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन थ्रू दिस सेंसर। उसके बाद हम ये एक्चुएटर्स की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर डिवाइस, ये अभी तक जो हमने बात की थी, दिस इज ऑल अबाउट द सेंसर एंड सेंसर बेस्ड सिस्टम्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुएटर्स। तो यहाँ एक्चुएटर्स की जब बात की जाएगी, और हमने अभी बात भी की है कि एक्चुएटर का जो फंक्शन होता है, उसकी जो प्रोफाइल होती है, जस्ट रिवर्स है किसके, जो सेंसर हम यूज कर रहे हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट ए कंट्रोलर कमांड सिग्नल इनटू ए चेंज इन ए फिजिकल पैरामीटर, कि हमारे जो सिग्नल दिया हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर, जो कमांड दिए सिग्नल की फॉर्म में, उसको फिजिकल पैरामीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ एनी एक्चुएटर्स। द चेंज इज यूजुअली मैकेनिकल, ठीक है। जो भी चेंज आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो मॉडिफिकेशन हुआ है इनपुट डेटा का, वो मैकेनिकल क्वांटिटी के रूप में होगा। An actuator is also transducer because it change one type of physical quantity into some other alternative form। तो हमने जो डेफिनेशन थी ट्रांसड्यूसर की, कि एक तरह की क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के अंदर जो कन्वर्ट या मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो एक्चुएटर जो है वो हमारे पास एक तरीके से ट्रांसड्यूसर है, जिसके थ्रू हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है कि एक्चुएटर्स इज यूजुअली एक्टिवेट बाय लो लेवल कमांड सिग्नल, सो एम्पलीफायर में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सफिशिएंट पावर टू ड्राइव द एक्चुएटर्स। ठीक है, तो यहाँ हमको, क्योंकि जो सिग्नल दिया जा रहा है वो वीक सिग्नल है, तो वी नीड द सम एम्पलीफिकेशन पावर, और उस एम्पलीफिकेशन के लिए को एम्पलीफाई करने के लिए हमको एक एम्पलीफाई, उस डेटा को या उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वी नीड सम एम्पलीफिकेशन डिवाइस और सर्किट, जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ये हमारे पास एक्चुएटर्स का एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ सिग्नल, लॉजिक सिग्नल मिला, सिग्नल प्रोसेसिंग किया, उसकी एम्पलीफिकेशन किया, फिर यहाँ पे उसको मैकेनिज्म में लेके आ गए, यानी कि उससे उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और फिर हम उस चीज को जो एक्चुएशन एलिमेंट है उसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ फीडबैक कॉन्सेप्ट लगा के एक्चुएटर सेंसर, जिससे ये चेक कर रहे हैं कि जो सिग्नल मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। तो फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम वी कैन एक्सेस एंड वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन लर्न कि हाउ द logic signal will be processed and amplified, then it will be converted into इलेक्ट्रिक, जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक या फाइनल एक्चुएशन एलिमेंट का मतलब है कि किस तरीके से हमने जो इनपुट सिग्नल था, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, उसको किस तरीके से हमने ट्रांसफर किया है मैकेनिकल क्वांटिटी के अंदर, या रोटेशन के अंदर, या मोटिव पावर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इन चीजों को यूज करते हुए हम फाइनली वी कैन कन्वर्ट द सिग्नल इनटू मैकेनिकल क्वांटिटी। मेनली सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। हाँ, अगर इसको सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो, अगर हमको
अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो वो एक्चुएटर्स है। जो अभी आप देख रहे होंगे ना, जितनी भी व्हीकल्स है, ई व्हीकल्स की बात की जा रही है, यस सर। ये भी एक तरीके से वहां पे भी हम एक्चुएटर्स यूज कर रहे हैं कि वहां पे मोटर को ड्राइव किया जा रहा है, मोटर को रोटेट किया जा रहा है और उस मोटर यस के सर। साथ एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया और शाफ्ट से व्हील रोटेट हो रहे हैं। यस सर। तो ये एक्चुएटर्स है। तो रोबोटिक के अंदर जब हम भी मोटर यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है, जब हमको ह्यूमनॉइड की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमको वोल्टेज से या इनपुट सिग्नल देते हैं और उनको मोटर्स को रोटेट कराते हैं और हमको जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कितना रोटेशन चाहिए, वो डॉफ जिसको रोबोटिक्स के अंदर बोला जाता है, उस डॉफ के अकॉर्डिंग हम चीजों को चेंज कर सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट द एक्चुएटर just a reverse process of sensor and we are converting the our electrical quantity into mechanical power। और इसको बिल्कुल डायरेक्ट शब्दों में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि we can generate some motive power through the actuators। ओके सर। ये हमारे पास एग्जांपल है टाइप ऑफ एक्चुएटर्स के अंदर। तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज की गई है, डीसी सर्वो मोटर यूज की गई है, एसी मोटर्स यूज की गई है। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस है। तो स्टेपर मोटर को अगर हमको एक्यूरेट रोटेशन चाहिए तो वी नीड द सम स्टेपर मोटर। अगर जब हम टेप रिकॉर्डर वगैरह या जो इस तरह की चीजें हैं जिस पे हमको एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पर हम स्टेपर मोटर को यूज करते हैं। कांस्टेंट स्पीड के लिए अगर हमको किसी चीज को रोटेट कराना है तो वी नीड द सम स्टेपर मोटर, बिकॉज इसको सही तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है एंड वी कैन चेक एंड वी कैन एनालिसिस कि जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए एंड और क्योंकि हमको एक्यूरेसी ज्यादा जरूरत है किसी भी चीज के लिए, जो भी हम टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो वहां पर हम स्टेपर मोटर यूज करेंगे। जो प्लेबैक और सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमको जैसे पहले ऑडियो कैसेट्स होती थी, उन ऑडियो कैसेट्स के अंदर हमको एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती थी जिससे कि हमको जो भी रिकॉर्ड है उसके अंदर, जो भी सॉन्ग या वीडियो उसके अंदर रिकॉर्ड किया, वो बिल्कुल एक्यूरेट वे में ही प्ले हो। तो अगर हल्का सा भी उसके अंदर जो वेरिएशन आ गया स्पीड के अंदर या उसकी रोटेशन स्पीड में, तो जो आउटपुट है उसके अंदर एरर आ जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेपर मोटर्स को। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स ज्यादा आजकल यूज आ रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक रोटेटिंग है और साथ इसके साथ एक शाफ्ट लगा हुआ है। तो आप जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल मोटर से मोटिव पावर मिलेगी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपको मोटिव पावर मिलेगी, वो एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और इन शाफ्ट को हम किसी दूसरे पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे। तो ये केवल अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि जब हम सेंसर और एक्चुएटर्स की बात करते हैं तो उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनका मैकेनिज्म क्या है। तो अभी मैकेनिज्म तो वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि ये एक तरह से ट्रांसड्यूसर है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे माइक्रोफोन को हम मानते हैं कि इट विल बी यूज एन एन सेंसर एंड इट इज यूज टू कन्वर्ट द साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ हम बोलते हैं कि इसके अंदर एक डायफ्राम कनेक्टेड है जो माइक के साथ या माइक्रोफोन के साथ, और जैसे ही डायफ्राम को साउंड प्रेशर दिया जाता है तो वो उसकी पोजीशन शिफ्ट होती है, और उसकी पोजीशन शिफ्ट होगी तो उसके साथ एक आर्मेचर, एक कोइल कनेक्टेड है, और वो रोटेशन उसके अंदर स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग ऑफ डायफ्राम। एक डायफ्राम को जब बोला जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स ए वेरी थिन लेयर। जैसे ही साउंड प्रेशर पड़ेगा और मैं मेरे माइक को बिल्कुल नजदीक लेकर आऊंगा, तो साउंड प्रेशर की वजह से जो डायफ्राम है उसकी पोजीशन के अंदर चेंज होगा, और वो चेंज की वजह से जो उसके साथ एक कोयल या आर्मेचर कनेक्टेड है उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो रोटेट होने लगेगी। तो रोटेट होने लगेगी तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म कि हम किस तरह से सिग्नल्स को जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं थ्रू द ट्रांसड्यूसर, जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी एज ए इनपुट दे रहे हैं किसी ट्रांसड्यूसर को। यहाँ पे भी इसी तरीके से है कि जैसे अब स्पीकर की जो बात की जाती है, या हम जो एक वो भी एक तरह से ट्रांसड्यूसर है कि सराउंडिंग में रखा उन वाइब्रेशंस को किस तरह से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस तरह से रेडिएट किया जा रहा है, और फिर उसको हम एक्सेस कर रहे हैं या उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं साउंड सिग्नल के अंदर।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर है आपके, एक ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है, ह्यूमिडिटी और अल्ट्रासोनिक सेंसर की जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा और सिग्नल को ट्रांसफर करने के बाद वो एक्सेस करेगा कि किस तरीके से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है और उसको किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड होने के बाद कितनी देर में वो वापस आया, तो उस टाइम को वो कैलकुलेट करेगा और उसको यूज करते हुए हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसकी भी एक स्लाइड है मेरे पास, वो हम अभी देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। जनरली आप लोगों ने इसको पार्किंग सेंसर के रूप में भी व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स के अंदर देखा होगा। फोर व्हीलर के अंदर यही अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो, इस इमेज के अंदर जो हमारे पास दो सर्किल है, सर्किल जैसी शेप में सेंसर दिख रहे हैं। एक हमारे पास ट्रांसमीटर है, एक हमारे पास रिसीवर है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसको ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद ये सामने कोई भी अगर उसके बीच में या इनके पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर यानी दूसरा जो पार्ट है जो वो उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि कितने हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल हमको सुनाई नहीं दे। तो हम बोलते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हमारी हम लोगों की सुनने की क्षमता है या रेंज है, या हम बोल सकते हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हम, या ऑडियो सिग्नल को हम सुन सकते हैं। तो यहाँ अगर इससे ज़्यादा यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का सिग्नल या हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम जब ट्रांसमिट करेंगे थ्रू द अल्ट्रासोनिक सेंसर, फिर वो किसी मतलब उसको हमने ट्रांसमिट किया है, और ट्रांसमिट करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया और उस ऑब्जेक्ट उसके पास में आता है तो उससे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर इसको सेंस किया जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जो डिस्टेंस इसने कवर करी है वो कितनी करी है, तो टाइम उसके थ्रू कैलकुलेट कर लिया जाएगा। टाइम और वेलोसिटी के हिसाब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि वी हैव द टाइम, कि कितने टाइम पहले हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया था और किस स्पीड से आया, और उसके दोनों का हमको पता चल जाएगा। तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो ट्रांस रिसीवर मॉड्यूल पे वर्क करते हैं। ट्रांस रिसीवर मॉड्यूल का मतलब है कि इसके अंदर ट्रांसमीटर भी यूज किया गया है और इसके अंदर रिसीवर भी यूज किया गया है। तो इन दोनों को यूज करते हुए एक मॉड्यूल को के रूप में हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिजाइन किया है। जो ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, कि जो ट्रांसमिट सिग्नल हम कर रहे हैं वो कितनी फ्रिक्वेंसी का है। तो अभी मैंने बोला कि जो फ्रिक्वेंसी है वो जो हमारा ह्यूमन हियरिंग सिस्टम है जो 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, उससे अबव सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया है। और फिर ये इस सिग्नल को जब ट्रांसमिट करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक होगा और उसके हिसाब से हमको सिग्नल मिल जाएगा कि कितने जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने दूर पे। तो इंटरसेप्ट द वेव रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल, एंड ये इसका मेनली मैकेनिज्म है। तो यहाँ हमने देखिए जो फर्स्ट ऊपर वाला जो सेंसर है उसको हमने एज ए ट्रांसमीटर माना है, और जो सेकंड है उसको हमने रिसीवर माना है। इन दोनों को यूज करते हुए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो ऑब्स्टेकल है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। ये स्पेसिफिकेशन है कि जब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यूज करेंगे तो जो जो स्पेसिफिकेशन है उस मॉड्यूल की, मॉड्यूल का मतलब होता है कि इसके अंदर जब भी एक तो होता है सेंसर या एक सर्किट,
और एक होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होगा तो कि जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट चाहिए या जो एक पर्टिकुलर इस एक्टिविटी को या इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, वो सभी के सभी एक पीसीबी के ऊपर माउंटेड है, और हमको जस्ट उसको पावर देनी है और उसको कंट्रोलर या प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करवाना है, और हमको उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी कैन एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन। तो फाइनली व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस स्लाइड, we will discuss the specification of the ultrasonic सेंसर मॉड्यूल। कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो देखो ये बता रहा है कि इट प्रोवाइडेड टू 400 सेंटीमीटर नॉन कॉन्टेक्टिंग मेजरमेंट ऑफ फंक्शन, यानी कि नॉन कॉन्टेक्टिंग बेस्ड ये मॉड्यूल है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है कि अगर 400 सेंटीमीटर तक की रेंज में के अंदर, वो रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि जो क्वालिटी और जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं वो किस तरीके के सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। जो पार्किंग सेंसर है वो 2 फीट तक के लिए हम यूज करते हैं कि हमने जैसे रिवर्स पार्किंग कर रहे हैं व्हीकल्स की, और उसके भी उसमें हम चेक करते रहते तो इंडिकेटर आता रहता है, या हमको मालूम भी चल जाता है कि जो पीछे पार्क करते टाइम कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको स्क्रीन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है, मेरे हिसाब से आप सब देखा भी होगा आप सभी लोगों ने। So finally, we can do through the ultrasonic sensor, we can identify कि जो भी obstacle है जिसको भी हम चेक करना चाहते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है, तो it can be easily accessed or analyzed by the ultrasonic sensor. This is the specifications which is related कि उसकी जो capability है, उसकी जो ability है to find the exact location of the obstacle, तो वो 2 to 400 सेंटीमीटर है। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। वर्किंग फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की कोई भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। ट्रिगरिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूज करते हैं। स्विचिंग के लिए हम यूज किया जाता है, ट्रिगर कर दिया या ट्रिगरिंग कर देते हैं, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा एडीसी के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट के अंदर ट्रिगरिंग सर्किट का मतलब होता है कि किसी चीज को ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन कर देना। अगर मैंने जैसे अभी बल्ब को ऑन किया तो मैंने ट्रिगर किया, मैन्युअली ट्रिगरिंग की है। अगर आप ऑटोमेटिक बनाना चाहते हो तो आप एक कोड जनरेट करोगे, वो कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग पॉसिबल हो जाएगी, या एक्टिवेट मोड पे या डीएक्टिवेट मोड पे सिस्टम चला जाएगा। तो ट्रिगरिंग इनपुट सिग्नल है कि किस तरह से इसको, मतलब जब इस मॉड्यूल को मैं यूज कर रहा हूं तो वो एक्टिवेट स्टेट में, ऑन स्टेट में किस तरह से होगा, या स्टार्ट कैसे किया जाएगा। तो हाउ द अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल विल बी स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने टीटीएल यूज किया है, ट्रांजिस्टर लॉजिक पल्स को यूज किया है, और उसके थ्रू हमारा सिग्नल हमारा मॉड्यूल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है या फिर हम रिसीव कर पा रहे हैं। अभी इसको किस तरह से, क्योंकि अभी सर, हो सकता, एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर, ये वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो है 40 किलोहर्ट्ज से नीचे क्यों नहीं यूज कर सकते? देखिए इसके अंदर ये रखा गया है कि जो जो हम यूज जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर पाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही इसको एज ए इनपुट यूज करते हैं, और तभी अगर सिग्नल स्ट्रांग होगा तभी वो रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीव किया जाएगा हमारे रिसीवर के थ्रू। अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब भी कर दिया जाए। तो हाँ, यहाँ पे एक कंडीशंस लगा दी है कि जो सिग्नल हम यूज करेंगे वो जो ऑडिबल सीक्वेंस रेंज है, ह्यूमन हियरिंग सिस्टम है जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक चलता है, उससे ऊपर की रेंज लेंगे तभी वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और रिसीवर उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास एक वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास सेंडर एंड रिसीवर है, जो जो एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सेंडर रिसीवर के पास पहुंच रहा है। सेंडर रिसीवर का मतलब है कि मैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। उस अल्ट्रासोनिक सेंसर या जो मॉड्यूल को यूज करते हुए मैंने पहले हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सेंड आउट किया है, ट्रांसमिट किया है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जैसे उसने ऑब्जेक्ट देखा तो वो उससे रिफ्लेक्ट हुआ है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस रिसीव किया गया है। तो यहाँ हमने कितनी देर पहले इसको भेजा था और उसके हिसाब से हम
कैलकुलेट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है यहाँ पर। ये एक हमने यूज किया है कि एक वापस यहाँ पे एक क्रिप्ट किया है, फिर इसकी इको आई है यानी ट्रांसमिट किया है, फिर वो उसकी इको एक्सेस की गई है, रिसीव की गई है रिसीवर के थ्रू, और फिर हमने चेकआउट कर लिया कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहाँ पे मीटर पे या जो भी एलईडी या आउटपुट या डिस्प्ले डिवाइस है उसके ऊपर कोड प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है। इसी को अभी हम देखते हैं तो जो गूगल कार की बात की जा रही है, जिसमें ड्राइवरलेस कार की बात की थी और स्टार्टिंग के अंदर क्लासेस में हमने बात भी की थी, तो उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं एक अभी अल्ट्रासोनिक तो यूज कर रहे हैं, साथ के साथ हम एक और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसका भी फंक्शन इसी तरीके से है, लेकिन वो वहाँ पे क्या है कि लेजर को यूज किया जा रहा है जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट और बहुत जल्दी से ये पता कर सकते हैं कि जो लोकेशन है किसी ऑब्जेक्ट की वो किस तरीके से है। वहाँ पे भी सेंसर रखा है, तो मैकेनिज्म या जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर में हम यूज कर रहे हैं, बट वहाँ पर हमने लेजर को यूज किया है जिसके थ्रू हम बहुत तेजी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्स्टेकल है, जो व्हीकल के पाथ पर आ रहा है उसको किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कनेक्शन का है कि अगर हमने अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो उस अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल के अंदर पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, उसको कंट्रोलर के साथ या प्रोसेसर के साथ या जो भी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 पिन यूज की गई है। देयर आर 4 पिन्स विच इज यूज टू कनेक्ट द आवर अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल विथ प्रोसेसिंग या डेवलपमेंट बोर्ड। तो पहला हमारे पास पावर सप्लाई है जिसको वीसीसी के रूप में हम यूज कर रहे हैं। एज वी नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग द 5 वोल्ट डीसी सप्लाई विद आवर अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल। हाउ वी कनेक्ट, तो उसको हम अभी देख भी लेंगे कि किस तरह से उसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया जाता है, या जो भी हम रेस्पबेरी पाई यूज करेंगे या डेवलपमेंट बोर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। मार्केट में जाएंगे तो आप इसको SCSR04 के नाम से बोलेंगे कि वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए। तो ये कंपनी का एक स्पेसिफिकेशन है कि SCSR04 आप बताएंगे और वो आपको ये वाला अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल देगा। वीसीसी और ग्राउंड हो गया। ट्रिगरिंग और EQ के लिए हमने बताया था कि जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, जब हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे ट्रिगर्ड, और इको यानी कि हम इसको रिसीव करने हैं। तो बेसिकली या जनरली हम बोल सकते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल है उसके अंदर हम 4 पिन का एक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द एनी डेवलपमेंट बोर्ड और एनी कंट्रोलर फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज। यहाँ से हमको पता चल जाएगा सिग्नल को रिसीव कर लिया, एंड उसको अगर हम चाहते हैं कि LED डिस्प्ले डिवाइस पे या आउटपुट पर हम उसको चेक करें तो वो चेक कर सकते हैं। यह एक एप्लीकेशन पार्ट आ गया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैन बी मेजर द फॉलोइंग पैरामीटर विदाउट द इवन गेटिंग इन कांटेक्ट विद द मीडियम विच इज टू बी मेजर्ड। तो दिस स्लाइड इज रिलेटेड टू कि किस तरह से एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो डिस्टेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, लेवल के अंदर यूज कर सकते हैं। आपने अभी देखा भी होगा कोविड के अंदर जो सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन थी उसके अंदर या तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करेंगे या आप यूज करेंगे IR सेंसर। तो ज्यादा इफेक्टिव है कि आप IR सेंसर को यूज करें, जिसमें आप जैसे उसके पास लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टेकल आया है, तो उसके बाद वो जो भी सैनिटाइजर है वो उसके साथ आएगा, या लिक्विड फॉर्म में जो भी सैनिटाइजर या यूज किया है वो आता है। या फिर हम टैप के लिए यूज कर सकते हैं, या वाटर फ्लो के लिए बता सकते हैं कि जो वाटर टैंक्स वगैरह के अंदर है उसका लेवल क्या है, तो वो भी इसके थ्रू पता चल सकता है। डिस्टेंस के लिए तो बता ही दिया आपको कि पार्किंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इनकी मेन एप्लीकेशन है जहाँ पर हम जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कनेक्शंस हैं कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये आर्डिनो, अभी हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्डिनो बोर्ड या आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड को किस तरह से हम काम में लेते हैं। तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। तो अभी तो केवल आप इतना सा देख लें कि पिन नंबर 2 और 4 को हमने ट्रिगरिंग और इको से कनेक्ट किया है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द
power supply and the ground with the Arduino Uno. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे ही यहाँ पे पीछे से जो पार्किंग सेंसर में की बात कर रहा था मैं, तो वहां पर आपने देखा होगा 4 व्हीलर के अंदर ये सेंसर्स लगे होते हैं और वो फिर सिग्नल्स को जनरेट करते रहते हैं। जैसे ही आपने रिवर्स गियर लगाया, जैसे रिवर्स गियर लगाया तो अब इसके पास जैसे ऑब्स्टेकल आ गया तो यहाँ पर बाजार अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है तो वहां पर अलार्म आना लग जाएगा अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल नजदीक आ गया है तो, और साथ में उसकी डिस्प्ले भी आने लग जाएगी। तो इसको यूज करते हुए हम इसको पार्किंग सेंसर में या डिस्टेंस को मेजर करने में हम काम में ले सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? हेलो, इसमें कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? नो सर। एक मिनट, देखिए सर। हाँ जी सर, ये अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये किसी ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहा है, ये समझ में नहीं आया सर। देखिए इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इसके इस मॉड्यूल के अंदर दो चीजें लगी हुई है। एक जो मॉड्यूल है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है और जो दूसरा मॉड्यूल है उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। अब कब रिसीव कर रहा है, जैसे मैंने किसी से एक मॉड्यूल के थ्रू हमने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेंड आउट किया, ट्रांसमिट किया सराउंडिंग में। अब जैसे इसको सराउंडिंग में ट्रांसमिट किया तो यहाँ जितने भी ऑब्स्टेकल अगर नजदीक हैं तो उनसे वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उस मॉड्यूल की तरफ ही उसकी डायरेक्शन आएगी। हमने डिस्कस भी किया था, इसका एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर हमने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया, अगर कोई ट्रांसमिट करने के बाद कोई ऑब्स्टेकल बिल्कुल नजदीक आता है तो वहां पर हमको एक इको सिग्नल जो है वो रिसीव किया जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि जो सिग्नल हमने भेजा था उस सिग्नल को भेजने के बाद जो डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होके आया है वो कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ सिंपल सा ये है कि सिग्नल भेजा है, सिग्नल भेजने के बाद वो किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ उस कोलाइड होने के बाद, और वापस उसको रिसीव किया गया हमारे अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल ने। और जैसे रिसीव किया तो उससे पता चल गया कि कितनी देर पहले हमने भेजा था, ठीक है, और किस स्पीड से हमने भेजा था, और फिर हमको भी पता चल गया कि इतनी डिस्टेंस है इसकी, इतनी दूरी पर है वो। हेलो, यस सर। सर तो हमें इसकी स्पीड मालूम है और टाइम हम भी मालूम कैलकुलेट है। कर लेंगे और फिर उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू। हाँ, ओके सर। तो स्पीड हमको मालूम है। स्पीड क्या होगी वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ तो? सर 3 × 10⁻⁴। जो लाइट की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से हमने इसको भेजा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमने फ्रीक्वेंसी किस तरह से रखी है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। मैं अभी जितना तेज बोल रहा हूँ वो उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को सुनाई देगा, लेकिन एक लिमिट होगी मेरी अभी तो कि भाई इतना तेज बोल सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो ओल्ड कैंपस तक चल जाए, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बोल सकता कि जिसकी मेरी आवाज जेईसी या शंकरा तक चल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी सिग्नल किस तरह, तो जहां तक जाएगी वो उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा और मैं उसको रिसीव करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन इसलिए मैंने क्या किया है कि जैसे एक सेंसर की बात की उसके बाद मैंने आर्डिनो को लेके आया हूँ। फिर कल हम ह्यूमिडिटी सेंसर पे बात करेंगे और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर सेंसर है उनके ऊपर डिस्कशन किएंगे। तो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से
जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको किस तरह से इंटरफेस किया जाएगा, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा विद द आर्डिनो। तो पहला तो आप आज थोड़ा सा टाइम हो आपके पास तो हाफ एन आवर यू विल पे योर टू एक्सेस द सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्डिनो कि आर्डिनो एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे लोग इसको कंट्रोलर बोलते हैं लेकिन ये एक डेवलपमेंट बोर्ड है। पहली तो बात आ जानी चाहिए कि डेवलपमेंट और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में हमको मालूम ही है कि माइक्रो प्रोसेसर एक जनरल पर्पज मशीन है, लेकिन जो कंट्रोलर है वो डेडिकेटेड मशीन है। उस कंट्रोलर को हमने इस डेवलपमेंट बोर्ड आर्डिनो पे माउंट कर रखा है। अब बात आती है कि डेवलपमेंट बोर्ड का इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई टास्क हमको परफॉर्म करनी है एंड वी नीड द सम कंपोनेंट्स, वी नीड द सम पेरिफेरल डिवाइस विद दैट कि उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से कंपोनेंट को उसके साथ इंटरफेस किया जाएगा, वो सभी के सभी एक पीसीबी के ऊपर रख दिए हैं, माउंट कर दिए हैं, फैब्रिकेट कर दिए हैं। और जो प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए को भी इजी बना दिया कि बस आपको केवल बर्नर की वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से ही इनबिल्ड कर दिया है कि आपको केवल और केवल एक केबल के साथ आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को कनेक्ट करना है, जो आपने प्रोग्रामिंग की वो उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी। हम लोगों के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इस तरह के कोई इंटरफेस नहीं मिलता था, हमको एक बर्नर यूज करना पड़ता था, फिर उस कंट्रोलर के अंदर उसके उस कोड को अपलोड करना पड़ता था, अपलोड करने के बाद हमको उन सिस्टम पे लाना। लेकिन जैसे ही इस पे काम हुआ और आर्डिनो को यूज करने लगे तो एक एक्स्ट्रा जो बर्डन था, एक कॉम्प्लेक्सिटी थी कोड को बर्न करने की, बर्न का मतलब अपलोड करना डेटा कोड को कंट्रोलर के ऊपर, वो हट गया है। तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया है हार्डवेयर को यूज करना। केवल आपको कोडिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनाना है या आपके कॉन्सेप्ट को देखना है। बाकी जो अपलोडिंग का है वो जो मैकेनिज्म था वो उसको हमने या उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि आर्डिनो एक डेवलपमेंट बोर्ड है, open source electronics platform based on the easy to use hardware and software. It is intent for anyone making the interactive projects. उसके लिए हमने इसको यूज किया है। तो यहाँ हम जब बात करते हैं आर्डिनो यूनो की, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो स्पॉटलाइट से बताता हूँ, ये जो हमारे पास है पावर जैक है। पावर जैक का मतलब है कि जब भी हमको पावर सप्लाई की जरूरत होगी, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की जगह हम इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई के थ्रू इसको ऑपरेट करें, तो यहाँ पर हम 9 वोल्ट तक 9 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे सकते हैं। इसको बैरल जैक बोलते हैं, या जैक के थ्रू हम बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास अपलोडिंग का पोर्ट है जिसके थ्रू हम हमारे सिस्टम को या लैपटॉप को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्ड भी सुना होगा। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी हम जनरेट कर सकते हैं, कि जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है उस ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही हम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम जो आर्डिनो यूनो है उसके अंदर ATmega 328 कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं, और इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो 16 मेगाहर्ट्ज है। आप लोगों को मालूम भी है कि i3 i7 हम जो यूज कर रहे हैं इनकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 3.4 गीगाहर्ट्ज के अराउंड है। तो इसका मतलब है ये इनकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। जब भी कोई हम टास्क एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके हिसाब से कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होगी